So in this tutorial, I'm going to teach you about what is quicksort. Before understanding quicksort, you have to understand the basic concept of sorting. Sorting is any process of arranging items according to a certain sequences or in different sets, and therefore it has two common distinct meanings. First is ordering and the second one is categorizing. You can understand sorting in terms of ordering and in terms of categorizing. I'm writing here. The first word is ordering and second word is categorizing in terms of sorting. In ordering, arranging of items that has same kind, class or nature in some ordered sequences. But in categorizing, grouping and labeling items with similar properties that you want to sort. Again, I'm repeating, sorting is very simple process. In sorting, you have to arrange element in a specific sequence, ascending or descending. In sorting, we have two meanings. The first meaning is ordering and the second one meaning is categorizing. In ordering, arranging of item of the same kind, class or nature in some ordered sequences, but in the categorizing, grouping and labeling item with similar properties together. Now start what is quicksort. Quicksort is also a setting algorithm. It sort the list of an array. It is an efficient sorting algorithm serving as a systematic method for placing the elements of an array in order. It was developed by Tony Hoare in 1960. Quicksort, sometimes called partition exchange sort, because it works on partition. Sometimes called divide and conquer algorithm. So in a simple word, we can say merge sort is also a quicksort algorithm because quicksort contains divide and conquer technique. Quicksort work on pivot element. The word is pivot. Quicksort contains pivot element. With the help of pivot element, it can sort the data. It can sort the array in a specific ascending or descending order. Now discuss about what is pivot, how we can select pivot. This is quicksort algorithm. Here you can see pick an element called pivot from the array. Reorder the array so that all elements with the values less than the pivot come before the pivot, while all the elements with the values greater than the pivot come after it. It means it finds the elements called pivot, which divides the array into two halves in such a way that elements in the left half are smaller than pivot and elements in the right half are greater than pivot. After this partitioning, the pivot is in its final partition. This is called partitioning operation. Then recursively apply the above steps to the sub-array of elements with smaller values and separately to the sub-array of elements with greater values. These are the steps what you have to do in quicksort algorithm. First of all, you have to select the pivot element, then divide the array into two halves. Quicksort the left half, then quicksort the right half. First of all, you have to sort the left half, then you have to sort the right half. That's why we can say quicksort is partitioning algorithm. Now the question is that how you can select pivot element. You can select
pivot element. I'm writing here some steps, then with the help of following steps, you can select pivot element. Always pick first element as pivot. Always pick last element as pivot. Pick a random element as pivot. You can pick a random element for your operation. For the quick sort operation, you can select first element, or you can select last elements, depend on you. In the last, I'm writing here, you can select medium as in pivot. I'm writing here, pick median as pivot. So ये सारे स्टेप्स हैं आपके पास. आप या तो फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करें पिवट का, पिवट के लिए, या तो आप सेलेक्ट करें लास्ट एलिमेंट पिवट को कैलकुलेट करने के लिए, या आप कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लें पिवट का, या फिर आप मीडियन कैलकुलेट कर लें पिवट. जब आपके पास पिवट एलिमेंट निकल जाएगा तो आप क्या करें, अपना एरे का पार्टीशन कर दें आप, जैसा कि स्लाइड्स में मेंशन था. फर्स्ट एड पार्टीशन आपका लेफ्ट पार्टीशन बनेगा, सेकंड पार्टीशन आपका राइट पार्टीशन बनेगा. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर. कुछ एग्जाम्पल में एक एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, पिवट एलिमेंट 43, जो कि सेंटर एलिमेंट सेलेक्ट किया है. पिवट के अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो स्मॉलर एलिमेंट है पिवट से, और राइट साइड पर देखें तो आपके पास ग्रेटर एलिमेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है. एक डेमो था कि किस तरीके से पिवट को सिलेक्ट करना है. पिवट के लेफ्ट पे स्मॉलर है और पिवट के राइट पे ग्रेटर है. तो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि हमने करना क्या है. हमें पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, और पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करने के मैंने कुछ स्टेप्स बताए आपको. या तो आप पहला एलिमेंट सेलेक्ट करें, या तो आप लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट करें, या तो आप कोई मीडियन एलिमेंट सेलेक्ट कर लें, मीडियन कैलकुलेट कर लें, या फिर आप कोई रैंडम एलिमेंट सेलेक्ट कर लें फॉर द पिवट. सेलेक्ट करने के बाद आपने पार्टीशन करनी है लेफ्ट हाफ की और राइट हाफ की. जैसा कि यहाँ पे मेंशन था एल्गोरिथम में हमारे पास कि reorder the array so that all elements with the value less than the pivot come before the pivot, while all the elements while values greater than the pivot come after it. ठीक है, इसका मीनिंग यही थे कि it finds the element called pivot which divides the array into two halves in such a way that element in the left half are smaller than the pivot and element in the right half or greater than the pivot. एक एग्जाम्पल लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से हमने क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम परफॉर्म करना है, कैसे पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, किस तरीके से हमने लेफ्ट और राइट पार्ट को पार्टीशंस को सॉल्व करना, और एट द एंड हमें किस तरीके से आफ्टर अप्लाइंग क्विक सॉर्ट हमारा डेटा हमें सॉर्ट होके मिलता है. सो लेट्स कंसीडर एग्जांपल. सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा एलिमेंट्स हैं. सपोज ए इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ 12 नंबर्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास 44 है यहाँ पर, 33, 11, 55, 27, 90, then suppose कर लेते हैं 40, 60, then suppose 99, then 22, 88 and then again 60. ये हमारे एलिमेंट्स हैं, सेट्स ऑफ एलिमेंट जो हमारे एरे में है, और हमने इस पे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम लगा के डेटा को सॉर्ट करना है. तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमने पिवट एलिमेंट सेलेक्ट किया, क्या स्ट्रेटजी हमने फॉलो करी, किस तरीके से हमने पार्टीशन करे, और फिर हमने हर पार्टीशन पे किस तरीके से सॉर्टिंग को अप्लाई किया. तो यहाँ हम अप्लाई करने जा रहे हैं क्या, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम. तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई करना है क्विक सॉर्ट
एल्गोरिथम। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है, लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग विद द लास्ट नंबर 66। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 88 के बाद ये 66 सपोज कर लेते हैं, 60 नहीं है, इसको हम 66 सपोज कर लेते हैं, 68। सो लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग विद द लास्ट एलिमेंट 66, स्कैन द लिस्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो एक एलिमेंट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, इसके अलावा एक और एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। वी यूज द फर्स्ट नंबर 44। तो हमने फर्स्ट नंबर लिया और हमने लास्ट एलिमेंट लास्ट नंबर लिया। अब हम स्कैनिंग स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट की राइट टू लेफ्ट। ठीक है, कंपेयरिंग करना है आपको हर नंबर को किससे, 44 से। 44 इज माई पिवट एलिमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, 44 मेरा क्या है, पिवट एलिमेंट है। तो देखते हैं किसे किसे आपने सॉर्ट करना है। आपने पहले कहाँ पे चेक करना है, पहले आपने राइट पे चेक करना है। आपने कैसे स्कैन करना है, आपने राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है। सबसे पहले आपने राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है, फिर आपने कैसे स्कैन करना है, फिर आपने लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। बस आप इतना याद रखें, पहले राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट स्कैन करने में आपने क्या चेक करना है, आपने स्मॉलर एलिमेंट चेक करना है, जैसा कि मैंने एल्गोरिथम में आपको बताया था, स्मॉलर एलिमेंट। और लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग में आपने क्या चेक करना है, ग्रेटर एलिमेंट। वो जो एलिमेंट हो आपके पिवट से ग्रेटर है या नहीं, वो जो एलिमेंट्स है आपके पिवट से स्मॉलर है या नहीं। तो 44 इट्स योर पिवट एलिमेंट। आपने पहले कंपेयर किया 66 से, तो 44 जो है आपका पिवट एलिमेंट। आपने पिवट एलिमेंट कौन सा चूज किया, आपने पिवट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट चूज किया। पिवट एलिमेंट आपका फर्स्ट भी हो सकता है, आपका लास्ट भी हो सकता है, आपका मिडिल भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है आपका। तो ये आपका पिवट एलिमेंट है। इसको आपने कंपेयर किया 66 से, 44 स्मॉल है 66 से, फिर आपने कंपेयर किया 88 से, 88 से भी स्मॉल है, 66 से भी स्मॉल है, 22 से स्मॉल नहीं है। जहां पे आपको लगता है स्मॉल नहीं है, वहां पे आपने क्या कर देना है, आपने स्वैपिंग फंक्शन परफॉर्म कर देना है। तो जब आपने स्वैपिंग फंक्शन परफॉर्म किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इस तरीके से चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया क्या, 22। और कीजिएगा, इसको मैंने सर्किल बना दिया है जहाँ पे स्वैपिंग हुई है, यहाँ मेरा आ गया 44 पिवट एलिमेंट। बाकी के एलिमेंट मैंने यहीं पे इसको कॉपी कर दिया है। अगेन अब हमने इस साइड से चेक करना है। पहले हमने राइट टू लेफ्ट स्कैन किया, अब मैं स्कैन करने जा रही हूँ लेफ्ट टू राइट। तो 44 जो मेरा पिवट एलिमेंट था वही आपका पिवट एलिमेंट रहेगा जब तक आपके पार्टीशन ना हो जाए। ठीक है, अब आप चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्टीशन में जाके आप अपना पिवट एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपका पिवट एलिमेंट 44 ही है जब तक पार्टीशन अकर नहीं होता। जब तक सारे एलिमेंट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के स्कैन नहीं हो जाते। अब आपने 44 चेक किया, यहाँ पे आपने स्मॉल चेक किया था, यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे, यहाँ पे आप ग्रेटर चेक करेंगे। ठीक है, तो अब आपने चेक किया 44 22 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। आगे आपने पास किया 44 33 से ग्रेटर है, यस। 11 से आपने चेक किया 44 11 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। 55 से आपने चेक किया क्या 44 55 से ग्रेटर है, नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्वैपिंग फंक्शन परफॉर्म कर दिया। तो 33 11 और यहाँ पे आपका 55 की जगह आ गया 44, और 55 आपका कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो गए, कॉपी हो गए एज इट इज। आई होप ये स्टेप आपके क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। हमने स्मॉल चेक किया, ग्रेटर चेक किया, फिर से हमने लिस्ट को स्कैन करना है राइट टू लेफ्ट। अगेन हमने स्मॉल को चेक करना है, यहाँ से हम फिर से स्मॉल को चेक करते हैं। अगेन मेरा पिवट एलिमेंट जो है वो 44 है। अगेन हमने स्कैन किया 44 को, 66 से भी छोटा है, 88 से भी छोटा है, 55 से भी छोटा है 44, 99 से भी छोटा है, 60 से भी छोटा है, बट 44 से क्या है, सॉरी 40 से क्या है, बड़ा है। इन सारे एलिमेंट्स छोटा है, बट 40 से क्या है, आपका 44 बड़ा है। जिससे बड़ा है आपने उससे क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया 40, और यहाँ आपका क्या आ गया 44। बाकी सारे एलिमेंट आपने क्या कर दिए, कॉपी कर दिए। बाकी सारे एलिमेंट आपके एज इट इज कॉपी हो गए। अगेन गौर कीजिएगा, अब हमारी ग्रेटर की बारी है स्कैन करने की, यानी कि दैट्स मीन अब आपने कैसे स्कैन करना है, आपने स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं बिगिनिंग विद 40। स्कैन द लिस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 44 इज 77।
देख लेते हैं 44 से 22 भी आपका 44 ग्रेटर है 22 से भी, 33 से भी, 11 से भी, 40 से भी, बट 77 से ग्रेटर नहीं है। दैट्स मीन इंटरचेंज 44 एंड 77 कर देते हैं इंटरचेंज। तो देखते हैं आपके पास लिस्ट क्या बनती है आफ्टर इंटरचेंजिंग। यहाँ पे आपने ग्रेटर चेक किया, ग्रेटर किससे चेक करा? अगेन आई एम हाईलाइटिंग, आपने 44 को चेक किया, 22 से बड़ा है, 33 से बड़ा है, 11 से बड़ा है, 44 40 से बड़ा है, बट 77 से क्या है? स्मॉल है। ठीक है, तो जिससे स्मॉल था आपने उससे क्या कर दिया? इंटरचेंज कर देना है आपने उससे। तो देखते हैं इंटरचेंज करने के बाद आपके पास लिस्ट क्या ऑब्टेन होती है। यहाँ आपका आ गया 22, पहले हम यहाँ लिख देते हैं क्या, यहाँ आपका आ गया क्या 44, और यहाँ आपका आ गया क्या 77। बाकी के जो नंबर है वो आपके क्या हो गए? एज इट इज कॉपी हो गए। यहाँ आपका आ गया 33, 11, और ये आ गया 40, देन यहाँ आपका आ गया 60, 90, 55, 88, 66। अगेन यू हैव टू सी स्मॉल एलिमेंट। अब हम फिर से चेक करते हैं स्मॉल एलिमेंट। पिवट एलिमेंट स्टिल मेरा 44 है। अब आपने 44 को स्कैन करना है राइट टू लेफ्ट। तो और कीजिएगा, 44 जो है वो 66 से छोटा है, 88 से भी छोटा है, 55 से भी छोटा है, 99 से भी छोटा है, 60 से भी छोटा है, 77 से भी छोटा है, 99 90 से भी छोटा है। तो जब आपके सारे एलिमेंट स्मॉल हैं, दिस मीन्स ऑल नंबर्स हैव बीन स्कैन्ड एंड कंपेयर्ड विद 44। ठीक है, तो अब आपने क्या कर देना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लिस्ट में। All numbers, furthermore, all numbers less than 44 now from the sub list of the number to the left of 44, and all the number greater than 44 now from the sub list of the right 44. That's mean आपने करना क्या है, आपने राइट और लेफ्ट को ब्रेक कर देना। किस तरीके से आपने ब्रेक करना है यहाँ पर, ये आपकी, क्योंकि 44 से आपके सारे नंबर यहाँ पे स्मॉलर है, ग्रेटर है, 44 इससे भी छोटा है, सबसे छोटा है, तो ये आपकी बन गई पहली सब लिस्ट। और कीजिएगा, ये आपकी बन गई दूसरी सब लिस्ट। ठीक है, इस साइड वाले नंबर आपके क्या है? ग्रेटर है, और इस साइड वाले नंबर आपके क्या है? स्मॉलर है। तो यही हमने सीखा है कि इस साइड आप क्या चेक करते हो कि आपका नंबर स्मॉलर होना चाहिए, उस साइड आप क्या चेक करते हो, आपका नंबर ग्रेटर होना चाहिए। यानी कि लेफ्ट पे आपका नंबर क्या होना चाहिए? आपका पिवट एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए, और राइट पे आपका पिवट एलिमेंट क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट सब लिस्ट, ये आपकी बन गई सेकेंड सब लिस्ट। अब आपने क्या कर, और ये आपका एलिमेंट क्या हो गया? सॉर्टेड हो गया। अब आपने फर्स्ट सब लिस्ट को अलग से सॉर्ट करना है, देन सेकंड सब लिस्ट को अलग से सॉर्ट करना है, फिर आपने सबको क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट सब लिस्ट को सॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं सॉर्ट कर रही हूँ फर्स्ट सब लिस्ट को। और कीजिएगा, फर्स्ट सब लिस्ट में हमारे पास है 22, 33, 11 एंड देन 40। मैंने सिलेक्ट कर लिया अपना पिवट एलिमेंट इस फर्स्ट सब लिस्ट में। सपोज 22 मेरा पिवट एलिमेंट है, तो सपोज कर लेते हैं 22 आपका पिवट एलिमेंट है, तो यहाँ पे आ गया क्या? 22। कंपेयर करते हैं इसको 40 से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप क्या चेक करते हो? आप स्मॉल चेक करते हो। तो 22 स्मॉल है 40 से, बिल्कुल है। 11 से स्मॉल नहीं है, तो 11 आपका यहाँ आ जाएगा, और 22 आपका यहाँ चला जाएगा। 22 स्टिल इट्स योर पिवट एलिमेंट। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर को चेक करते हैं। तो 22 जो है वो 11 से बड़ा है, बिल्कुल है। 22 जो है आपका बड़ा नहीं है किससे? 33 से। 22 11 से तो बड़ा है, बट 22, अच्छा मैंने यहाँ पे आई थिंक इसको दोबारा से स्टेप को मिस कर दिया है। इसको दोबारा ठीक से लिख लेती हूँ मैं स्टेप को पहले, उसके बाद फिर मैं आगे चलती हूँ। इसको मिटा के दोबारा मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, गौर कीजिएगा फिर से। 22 जो था आपका 40 से स्मॉल था, 11 से नहीं था, तो 11 को यहाँ लिखना था, और 22 को हमने यहाँ पे लिखा। आ गया 40, आ गया आपका 30। अब चलते हैं ग्रेटर की तरफ। आ गया आपका ग्रेटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका ग्रेटर। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। अब 22 जो है आपका, मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको यहाँ पर, 11 से बड़ा है, 33 से बड़ा नहीं है, तो आपने स्वैप करना है किससे? 33 से। तो कर देते हैं स्वैप। 11 आपका यहीं पे रहा, 22 यहाँ आ गया, और 33 आपका यहाँ चला गया। अब आप गौर कर सकते हैं आपकी जो लिस्ट है वो क्या हो गई है? सॉर्ट हो गई है। तो देखें आपकी यहाँ पे लिस्ट आपकी क्या हो गई है? आपकी लिस्ट सॉर्ट हो गई है, ये वाली।
फर्स्ट सब लिस्ट को मैंने यहाँ पे आपकी सॉर्ट कर दिया इस तरीके से 11, 22, 30, 40, उसके बाद आपको क्या मिलेगा 44। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेकंड सब लिस्ट को सॉर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आप सेकंड सब लिस्ट को सॉर्ट करना। सेकंड सब लिस्ट में क्या है आपके पास, सेकंड सब लिस्ट में आपके पास है 90, 27, 60, 99, 55, 88, 66। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास जो एरे एलिमेंट था उसमें कितने नंबर्स थे काउंट कर लेते हैं। अगर हम 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करें इसकी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12। दैट्स मीन अब आपने सॉर्ट करना है कहाँ से, आपने एरो को सॉर्ट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने इस पे अगेन क्विक सॉर्ट का रिकर्सिवली प्रोसेस अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स में बताया था। रिकर्सिवली आपने अप्लाई करते जाना जब तक आपको पूरी लिस्ट क्या ना मिल जाए, सॉर्टेड ना मिल जाए। ठीक है, तो अगेन आपने पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, फिर से आपने लेफ्ट स्कैन करना है, राइट स्कैन करना है एंड सो ऑन। तो आपने A6 को सॉर्ट, A6, A7, A8, A9, A10, A11 एंड देन A12। आपने इन सारी लिस्ट को आपस में क्या कर देना है, सॉर्ट करना है। तो इसको देखते हैं हम फिर से। हमारे फिलहाल 11, 22, 33, 40 ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, 11, 22, 33, 40 देन 44 हमें मिल गया है सॉर्ट होके कंप्लीट। अब हमने यहाँ से यहाँ तक लिस्ट को क्या कर देना है, सॉर्ट कर देना है। तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं फिर से।